Banaras University, Indore. I, Neha Modak, take this opportunity to welcome our dignitaries. I welcome our Honorable Vice Chancellor, Dr. Sunil K. Somani, sir. It is pleasure for all of us, sir, to have you with us today. I would like to welcome our expert, Dr. V.K. Gupta, sir, for today's lecture. Also, I would like to welcome Dean Sciences, Dr. Preeti Jain ma'am, HOD Mathematics, Dr. Rekha Jain ma'am, and all other deans, HOD, faculty members, and all my dear students. We all are gathered here to celebrate Mathematics Day. Mathematics Day is celebrated in the memory of great Srinivasa Ramanujan, an Indian mathematician born to change the future of mathematics. He was never formally trained in the subject, yet the greatest mathematician of all the time. So, on this day, which is recognized to celebrate Ramanujan greatness and contributions in the field of mathematics, I would love to introduce our eminent speaker, as well as renowned mathematician Dr. V.K. Gupta, Professor and Head of Department Mathematics, Government Madhav Science PG College, Ujjain. In fact, National Mathematics Day proposal sent to Government of India Delhi by him for declaration of 22nd December as National Mathematics Day in the memory of great mathematician Ramanujan. He was nodal officer and professor in charge nominated by Department of Higher Education for best research in mathematics to establish Ideal Research Center Institute in Mathematics under the scheme of RUSA and World Bank. He is Ambassador Professor nominated by Department of Higher Education, Government of MP Bhopal. He supervised more than 20 scholars for PhD and more than 100 research papers was published by him in international journal. He was author of more than 15 books and delivered lectures and guest of honor in more than 150 seminars and conferences. About 100 lectures delivered in national and international seminar on Ramanujan by him. He was referee in more than 15 international journals, and he is also promoter of Vedic mathematics and Ramanujan mathematics in school, NCERT and Lok Shikshan Corporation. The very first mathematical model on COVID-20 was published in international journal by him, and after that invited by many vaccine laboratories. Also, dengue, chikungunya, HIV, swine flu models proposed by him was adopted and awarded by different institutes. In spite of such great achievement, he is very humble person and we are grateful for his presence among us. So without further ado, please join me in welcoming Dr. Gupta sir. Please sir. Thank you, madam. Hello. 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 जी सर यस आप सर आवाज आ रही है सर हेलो ऑडिबल यस सर मेरी आवाज आ रही शुड आई स्टार्ट जी सर हेलो जी सर आप ऑडिबल हैं मैं शुरू कर सकता हूँ जी सर जी है ना ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर सोमानी जी मैडम नेहा मोदक एचओडी मैडम रेखा जैन faculty students PC Jain sir all faculty members all participants a very good morning to all of you on occasion of National Mathematics Day I call Government of India has as National Mathematics Day in the year 2005
for 112th birth anniversary of Sri Vasanthi. This year, 2020, is the 100th death anniversary of Ramanujan too. So in his birthday, on his 100th death anniversary, it becomes necessary to examine the work of Ramanujan and assess ourselves Sir, what sorry we to and disturb what you. our government done in. Excuse me, sir. Sorry to disturb you. आवाज आ रही है? आपका वीडियो नहीं दिख रहा है सर. आपका वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. वीडियो ऑन है मैडम. नहीं सर, एक्चुअल में आपकी बैंडविड्थ लो है, इसलिए वीडियो ऑफ ही रहने दें. आपके यहाँ की बैंडविड्थ जो है, नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो एंड देयरफॉर वीडियो को ऑफ ही रखेंगे तो आवाज बराबर आएगी, क्योंकि पूरी कट कट के आ रही है आवाज. अच्छा ठीक है, वीडियो ऑफ कर देते हैं जी. ओके. आप लोग आवाज सुन रहे मेरी? हाँ सर, अब क्लियर आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना? Yes, sir. Please. So I had been reading Ramanujan since past 30 years. When there was no literature, no book, no journal was available, then obviously the question arises how I was and what I was reading about Ramanujan. Answer is very simple. Ramanujan constructed magic square of 8 by 8 size. We try to construct 4 by 4 and 5 by 5 magic squares in our school education, but could not find any clue or formula to construct 8 by 8 magic square. We also come to know that Ramanujan was genius in mathematics and the master of numbers. We thought that definitely Ramanujan will be the recipient of Nobel Prize, but on searching the name of Ramanujan among the list सर आपका माइक ऑफ हो गया है. ये अपने आप क्यों हो रहा है भाई? सर अभी ऑन है, अभी आपकी आवाज आई. Yes, sir. It's on now. During our higher studies, even we could not find anywhere Ramanujan in our syllabus. We wrote a number of letters to Swedish Academy to add the subject mathematics among the list of Nobel Prize subject, but unfortunately, we could not get succeed. So we decided to declare 22nd December as National Mathematics Day. But this task was not easy. We made a proposal and wrote to Government of India. About 3 years, we visited so many times to Delhi and presented Ramanujan's work and his research and his application before the High Power Committee. Ultimately, the government has declared 22nd December as National Mathematics Day. And by this way, I got an opportunity to pay to Hello? Hello? Yes, sir, you are audible. Sir, now you are audible. Okay. Now, this is the time we have to examine what we are doing in the field of number theory, Ramanujan. Ramanujan
कि का जो बचपन था, it was full of struggle, full of poverty. At that time, the epidemic cholera and chickenpox at the full groom. So it was very difficult for him to survive. Sir, you are not audible now. आवाज आ रही सर? Now audible. Yes, sir. Audible. Okay. So हम ये देखें कि रामानुजम के मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशंस क्या थे। तो रामानुजम के मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करें तो एक तो स्कूल एजुकेशन के दौरान उन्होंने क्या रिसर्च की थी, कैम्ब्रिज जाने के पूर्व उनकी क्या रिसर्च थी, कैम्ब्रिज में रहकर उन्होंने क्या रिसर्च की और वहां से वापस लौटने पर उनका रिसर्च में क्या योगदान रहा। ये 4 पार्ट है। तो लार्जली ही वाज सेल्फ एजुकेटेड, ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस, his life was full of struggle and poverty. At the age of 15, he solved about 5,000 theorems of a tutorial book written by G.S. Carr. George Shubish Carr was conducting coaching classes in London. It was the volume of 1856 Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics. सबसे पहले इस पुस्तक को रामानुजन ने पढ़ा था, लेकिन यद्यपि ये पुस्तक एक ट्यूटोरियल बुक थी, लेकिन क्योंकि रामानुजन ने पढ़ा था तो ये पुस्तक 1856 ये एक ऐतिहासिक पुस्तक हो गई। और इस पुस्तक को पढ़ के रामानुजन ने लगभग 120 थ्योरम्स का जो है एक सेट तैयार किया। ये 120 थ्योरम्स जो थे मद्रास में रहकर उन्होंने सॉल्व किए थे, बट आफ्टर सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, व्हेन हिज वर्क वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय the then mathematician of Madras Presidency, then he wrote a letter to Cambridge University for examining the theorems of Ramanujan. रामानुजन ने जब उसके जो 120 थ्योरम्स थे उसका परीक्षण मद्रास प्रेसिडेंसी की प्रोफेसर जब नहीं कर पाए थे, तब उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 3 प्रोफेसर्स को लिखा, 2 ने डिक्लाइन कर दिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हमारी आवाज? हेलो, Yes, sir, you are now audible. नो ऑडिबल। आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है अब। अच्छा ठीक है। तो ये जो 120 थ्योरम्स थे, ये 120 थ्योरम्स उस समय रामानुजन जो था, ही वाज 12th फेल, he could not qualify the intermediate exam though he was getting 100 out of 100 marks in mathematics. उस समय जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो प्रोफेसर थे वो उन 120 थ्योरम्स को समझ नहीं पाए, उन्होंने रामानुजन को अप्रिशिएट नहीं कर पाए। तब ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश भारत में मद्रास गवर्नर के द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को लिखा गया कि बच्चा जो है 120 थ्योरम्स को जो है वो सॉल्व किया है, आप इसका परीक्षण करें। और उस दौरान वो 120 थ्योरम्स जो थे वो हार्डी को मिले और हार्डी ने ये एग्जामिन किया
और ये डिसाइड किया कि रामानुजन को कैम्ब्रिज में इनवाइट किया जाए। नाउ द क्वेश्चन अराइज, सबसे बड़ी समस्या उस समय ये पैदा हुई कि उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी और जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का या ब्रिटेन का जो संविधान था उसके तहत किसी भी विदाउट यूनिवर्सिटी डिग्रीधारी को कैम्ब्रिज में आमंत्रित नहीं किया जा सकता था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ही वाज 12th फेल एंड हैज नो यूनिवर्सिटी डिग्री which is mandatory for admission in Cambridge University. The university where the prince and princess of Britain studied, Newton and Rutherford studied, amended the constitution of Cambridge University, House of Lords and House of Commons, ब्रिटेन की जो संसद कहलाती है, उन्होंने रूल्स को चेंज किया and a genius of India went to England. इस तरह से रामानुजन को आमंत्रित किया गया। तो यहाँ से महत्वपूर्ण बात ये रही कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक जीनियस भारतीय को बुलाने के लिए किस तरह से अपने यहाँ के संविधान में संशोधन किया और किस तरह से रूल्स और वहाँ की चेंज की। उस समय रामानुजन जो है मार्च 14 में शिप से जो है वो ब्रिटेन के लिए प्रस्थान कर गए और ब्रिटेन प्रस्थान करने के पूर्व यदि हम देखें कि 12वीं फेल होकर उन्होंने भारत में क्या कार्य किया था, तो सर्वप्रथम जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग हिज स्कूल एजुकेशन ही कंस्ट्रक्टेड मैजिक स्क्वायर्स ऑफ साइज 8x8। ये जो मैजिक स्क्वायर्स थे ये यद्यपि रामानुजन की डिस्कवरी नहीं थी क्योंकि ये आयलर्स के समय से 3x3 के मैजिक स्क्वायर डिस्कवर किए जा सकते थे, ये 17वीं शताब्दी के थे। रामानुजन जस्ट जनरलाइज द साइज ऑफ मैजिक स्क्वायर्स और इसके पश्चात रामानुजन ने जो सबसे पहला शोध पत्र अपना प्रकाशित किया वो शोध पत्र जो है 1911 में पब्लिश हुआ था। 1911 में जो पहला शोध पत्र रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी में उसका प्रकाशित हुआ था, उस समय ही वाज 12th फेल और इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी ने उसके जिस रिसर्च पेपर को पब्लिश किया था उस पेपर का नाम था सम। सर फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर। अच्छा थोड़ा तो हम चर्चा कर रहे थे कि रामानुजम का जो
फर्स्ट रिलीज पेपर था उस पेपर का जो टाइटल था वो था some property of- ये इस पेपर के आधार पर रामानुजन को कैम्ब्रिज ऐसा क्यों हो रहा है यार ये तो हो गया तो बंद कर दो Now you are audible. आप स्टार्ट करिए सर. जी हेलो. हेलो. हाँ सर आप ऑडिबल हैं, आप स्टार्ट करिए. हाँ जी 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 आवाज आ रही है यस सर. हाँ थोड़ी पोजीशन मैंने चेंज कर ली है ओके सर. तो हम चर्चा कर रहे थे कि बिफोर लिविंग फॉर कैम्ब्रिज रामानुजम पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पेपर टाइटल्ड सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर on the basis of this paper he was awarded bachelor of arts science degree from Cambridge University क्योंकि रामानुजन जब पहली शर्त ये थी कि वो कोई विश्वविद्यालय की डिग्री वहां से जो है पास नहीं करेंगे क्योंकि ही वाज वरीड वो चिंतित रहते थे कि 12th में मैं फेल हूं तो हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में वापस में पास ना हो पाऊं तो उन्होंने पहली शर्त रखी थी कि मैं कोई परीक्षा वहां से पास नहीं करूंगा तो द फर्स्ट कंडीशन वाज एक्सेप्टेड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेकंड उसकी कंडीशन ये थी कि भाई जब मैं कैम्ब्रिज आऊंगा तो मेरे पेरेंट्स की स्थिति बड़ी आर्थिक रूप से कमजोर है तो मुझे कम से कम 250 पाउंड की स्कॉलरशिप मुझे मिलना चाहिए इसमें से मैं करीब 50 पाउंड जो है ये अपने पेरेंट्स को भेजूंगा तो मुझे इतनी छात्रवृत्ति मिलना चाहिए तो उसकी दूसरी कंडीशन भी रामानुजम की जो थी वो एक्सेप्ट की गई तो दोनों कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के पश्चात ही वाज इनवाइटेड एट कैम्ब्रिज अब 2014 में जब वो कैम्ब्रिज पहुंचे और अनफॉर्चुनेटली लगभग 5 माह बाद ही जो है वहां पर यूरोप में वार छिड़ गया था और वार छिड़ने से जो स्थिति बनी कि वहाँ सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए जो वहाँ का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी उसमें भी इन्फेंट्री को शिफ्ट कर दिया गया रेंस लाइब्रेरी जो थी वो हॉस्पिटल बन गया तो वहाँ पर जो स्थितियां निर्मित हुई कैम्ब्रिज में उससे यद्यपि वो मैथमेटिक्स की तरफ कंसंट्रेट तो थे लेकिन
अत्यधिक कोल्ड होने के कारण, माइनस टेम्परेचर के कारण उन्हें समस्याएं स्वास्थ्य की पैदा हुई। और यद्यपि चूंकि वो प्योर वेजिटेरियन थे, ही वॉज फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, और उस दौर में वाइन और नॉनवेज जो था वो ब्रिटेन में कंपलसरी होता था अपनी बॉडी को जो है फिट रखने के लिए। लेकिन रामानुजन ने सर्वप्रथम अपनी संस्कृति को ही ध्यान में रखा कि वो नॉन वेज नहीं लेंगे, न वाइन लेंगे। यद्यपि ये उनके लिए बड़ा एक ट्रबलसम बना और उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता चला गया। वो वहां पर 5 वर्ष रहे रामानुजन। यदि हम ये देखें कि इन 5 वर्षों में उन्होंने वहां पर क्या क्या कार्य किए, तो 5 वर्षों में जो उनकी रिसर्च हुई है, वो रिसर्च जो है अभी रामानुजम के जो प्रमेय हैं उनको लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं। वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर 100 साल से गणितज्ञ उनके प्रमेयों को हल कर रहे हैं, और अभी इतना ही समय और लगेगा। लगभग 100 वर्ष जो है वो रामानुजन के प्रमेय को सॉल्व करने में और समय लगेगा। आप सोच सकते हैं कि उनके प्रमेय जो थे वो कितने मैथमेटिक्स के लिए, आईसीटी सेक्टर के लिए, मेडिसिन के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए, पार्टिकल फिजिक्स के लिए, प्राइम नंबर्स थ्योरी, ये सारे जो उनके प्रमेय थे उनका एप्लीकेशन आज हो रहा है। यदि हम सोचें कि रामानुजन ने दूसरा कार्य ऐसा कौन सा किया था, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला पेपर सम प्रॉब्लम्स ऑफ बर्नौली नंबर। यदि भी बर्नौली जो है, आप लोग बीएससी के छात्र हैं, बीटेक के भी छात्र यहाँ हैं, तो मैं सोचता हूँ कि बर्नौली से आप लोग वाकिफ होंगे। जेम्स बर्नौली, डिक बर्नौली और जॉन्स बर्नौली, ये 3 बर्नौली थे, है ना। बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ते ही हैं। तो बर्नौली नंबर्स तो दरअसल 18वीं शताब्दी के रामानुजन ने उस नंबरों को, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की। बर्नौली नंबर का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण ये था कि वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए नंबर के लिए महत्वपूर्ण थे। बर्नौली नंबर्स वेर यूजफुल टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का यदि हमें ये पता लगाना हो, उसके फैक्टर्स की स्थिति, उसकी डिविजिबिलिटी एंड सो ऑन, तो बर्नौली नंबर एक ऐसा कैरेक्टर था नंबर्स का जो यद्यपि आज कहीं पाठ्यक्रमों में न तो हम उसको जान पा रहे हैं, न उसको हम कहीं पढ़ पा रहे हैं, न उसके ऊपर किसी तरह की रिसर्च चल रही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रामानुजम का जो थ्योरम था, जो उन्होंने 12th फेल होने के बावजूद किया था, ये थ्योरम जो था लगभग 2500 वर्ष पुराना था, और ये इसका टाइटल था 2500 वर्ष पहले जो है 3 प्रॉब्लम्स ज्योमेट्री की ऐसी थी जो अनसॉल्व्ड थी। पहली थी स्क्वायरिंग ए सर्किल, दूसरी थी डबलिंग ए क्यूब, और तीसरी प्रॉब्लम थी ट्राइसेक्ट एन एंगल। तो पहली जो प्रॉब्लम थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। स्क्वायरिंग ए सर्कल से आशय ये था कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ रेडियस 1। हमें एक ऐसे स्क्वायरिंग ए सर्कल से आशय क्या ये है कि आपके पास में एक स्क्वायर है जिसकी रेडियस 1 है। तो पाई आर स्क्वायर में यदि आर का मान 1 रखेंगे तो सर्कल की रेडियस हो जाएगी पाई। अब हमें इस एरिया के बराबर एक स्क्वायर निर्मित करना है। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर whose sides will be root pi and root pi. So the question arises, root pi is permissible? root pi क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स कैन बी कैटेगराइज इन 2 कैटेगरी, वन इज एल्जेब्रिक एंड अदर वन इज ट्रांसेंडेंटल। यदि यहाँ पर हम नंबर्स को फिर से 2 भागों में डिवाइड करें तो रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल अगेन कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी, irrational
हाँ, हेलो हेलो। जी सर, यू आर ऑडिबल नाउ। ओके ओके, ये जो पेपर था, ये जो क्वेश्चन था, स्क्वेयरिंग सर्कल की जो प्रॉब्लम जो 2500 वर्ष पूर्व की थी, ये 1871 में मैथमेटिशियंस ने, जर्मनी और फ्रांस के मैथमेटिशियंस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्क्वेयरिंग द सर्कल। और ये रामानुजम ने इस प्रॉब्लम को और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को एक्सक्यूज मी सर, सर आप ना वीडियो ऑफ कर लीजिए ताकि आपकी आवाज क्लियर आए सर। गुप्ता सर। ट्वेल्थ फेल क्वालिफिकेशन के साथ उनका सेकंड पेपर था। अब जब वो कैम्ब्रिज पहुंचे, तो कैम्ब्रिज पहुंचने पर उन्होंने हार्डी के साथ कार्य किया। हार्डी ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। दे जॉइंटली स्टार्टेड रिसर्च। वहां उन्होंने जो शुरू की, और रिसर्च में सबसे पहले महत्वपूर्ण पार्ट जो था वो था प्राइम नंबर थ्योरी। तो आप जानते हैं कि प्राइम नंबर थ्योरी प्लस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइम नंबर्स के संबंध में आप ये जानते हैं कि प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर व्हिच आर वन आर इटसेल्फ। और तीसरी प्रॉपर्टी प्राइम नंबर्स की ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम वाज नॉट यूनिफॉर्म। प्राइम नंबर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं था। ये प्राइम नंबर्स थ्योरी जो है ये भी लगभग कम से कम 3500 वर्ष पहले की है। यदि 1650 बीसी में जाए, मिस्र में, ग्रीक में, यूनान में प्राइम नंबर्स को लोग जान गया, हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर बट बिफोर द डिस्कवरी ऑफ जीरो, ये जीरो 3500 वर्ष पूर्व जिस प्राइम नंबर को खोजा था, उसका आज तक हम जनरलाइजेशन या कोई जनरल फार्मूला अभी तक हम निकाल नहीं पाए। बहुत सारे कंजक्टर्स इसके ऊपर है, गोल्डबेक का कंजक्टर, उसके पश्चात सेकंड कंजक्टर जो है वो फार्मा का था। फार्मा ने जो है सेकंड कंजक्टर दिया। उसके पश्चात तीसरा हाइपोथेसिस जो आई वो रिमान, वो आई थी रिमान जीटा फंक्शन के ऊपर। तो रिमान जीटा फंक्शन जो है वो 1859 का है। 1859 में जो रिमान जीटा फंक्शन आया था वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर बेस्ड है। और उसमें भी जो है आपने देखा होगा कि जो लोग एमएससी में कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं उन्होंने रिमान जीटा फंक्शन को जरूर पढ़ा होगा। उसके पश्चात 1900
नहीं क्लेम किया था कि मैं को आपके प्रॉब्लम ऑफ फंक्शन, ये ऐसी प्रॉब्लम थी जीरो से 10 तक जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1:2.5 रही। 0 से 100 तक जो प्रोबेबिलिटी रही वो, हेलो, आवाज आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस। तो मैंने आपसे जैसे बता रहा था कि 0 to 10 तक प्राइम नंबर्स लिए, तो उसमें हमने देखा कि 0 से 10 तक 4 प्राइम्स हैं, है ना, 2, 3, 5, 7। यदि हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1 से 10 तक की यदि हमने पर्चियां होल में रख दी और उसमें से रैंडम निकाली, तो हम ये पाएंगे कि हर तीसरा नंबर प्राइम है। यदि 0 से 100 तक हम देखें तो 0 से 100 तक देयर आर 25 प्राइम नंबर्स, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1:4। 0 से 1000 तक में तो ये प्रोबेबिलिटी हो रही 1:7। देन 10,000 तक 1:9, 1 लाख तक 1:11। तो हम किस एनालिटिकल कंक्लूजन पर पहुंच रहे कि जैसे जैसे हम लार्जर नंबर की तरफ प्राइम में जा रहे हैं, वैसे वैसे प्राइम्स के आने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। ये एक गॉस ने ये बताया कि जैसे जैसे लार्जर नंबर तरफ आप जाएंगे, यू विल फाइंड ए रेगुलर। यदि इंफिनिटी तरफ हम जाएं
तो क्या स्थिति रहेगी, प्रोबेबिलिटी और कम होती चली जाएगी, या ऐसा तो नहीं कि इन्फिनिटी तक जाते जाते प्राइम नंबर समाप्त हो जाए। तो यहाँ हम एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिटिकल बिहेवियर, ये हमने अज्यूम किया है, हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे जैसे लार्जर नंबर तरफ की तरफ हम जाएंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी अभी भी प्राइम नंबर्स थ्योरी का कैलकुलेटेड हम नहीं कर पाए, और ओनली यही एक बहुत बड़ा कॉज है कि प्राइम नंबर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। इसी कारण अभी बैंकिंग सिस्टम, पासवर्ड सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी, आईसीटी सेक्टर, अभी आप देखते हैं कि जैसे मैं इस समय एक प्रॉब्लम से जो है जूझ रहा हूं, नेटवर्किंग प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जब आईसीटी थी, यानी बात हम टेलीफोनिक सिस्टम की करें तो टेलीफोनिक सिस्टम में फोरियर सिस्टम से जो है वो कम्युनिकेशन होता था। टेलीफोन एक्सचेंज में एक्सचेंज जो होते थे वो कोडिंग जो थी वो कोडिंग बेस्ड ऑन द फोरियर सिस्टम। उसके बाद डिस्क्रीट सिस्टम आया, तो डिस्क्रीट सिस्टम में आप ये देखेंगे कि डिस्क्रीट सिस्टम में डिस्क्रीट फोरियर सिस्टम जो आया, वहां पर नेटवर्किंग की जो प्रॉब्लम थी, उस नेटवर्किंग की प्रॉब्लम को, इम्प्योरिटीज को कुछ हद तक कम किया गया। रामानुजन ने जब ये प्राइम नंबर्स थ्योरी कैलकुलेट करी तो उसका जब आईसीटी सिस्टम में आया तो आरएफटी सिस्टम आ गया। आरएफटी सिस्टम में इम्प्योरिटीज को काफी हद तक कम किया गया, और आरएफटी सिस्टम जो है ये आप ये देखेंगे कि आईसीटी में या जितने भी आपके कम्युनिकेशन सेंटर हैं, चाहे दूरभाष का हो, वहां पर आप ये पाएंगे कि आरएफटी सेंटर्स में आरएफटी सिस्टम जो लगा है वो रामानुजन फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो आप देखेंगे कि 1917 में जिस चीज की डिस्कवरी हुई थी उसका एप्लीकेशन जो है वो अब लिया जा रहा है। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ रामानुजन मैथमेटिक्स। अब हम बात यदि करें कि रामानुजन का अगला कंट्रीब्यूशन क्या था, तो पार्टीशन थ्योरी। पार्टीशन थ्योरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पार्टिकल फिजिक्स। पार्टीशन थ्योरी जो है इसके ऊपर देश में कुछ हद तक रिसर्च चल रही है, और पार्टीशन थ्योरी भी जो है, यदि हम बात करें कि व्हाट इज पार्टीशन थ्योरी, तो पार्टीशन थ्योरी मींस द रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। किसी भी नंबर को लिखने की कितनी पद्धतियां हो सकती है। जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 कैन बी रिटन एज इन 2 ways, 2 + 0 and 1 + 1। यदि मैंने लिखा 3, तो 3 कैन बी रिटन एज 3 + 0, 2 + 1, 1 + 1 + 1। तो नंबर ऑफ राइटिंग द टर्म आर रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इज नोन एज द पार्टीशन ऑफ ए नंबर। तो पार्टीशन ऑफ ए नंबर जो है, यद्यपि ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे पार्टीशन थ्योरी ये बहुत टफ हो जाती है। तो रामानुजन और हार्डी ने का ये जो शोध पत्र था वो पार्टीशन ऑफ ए नंबर, इसके ऊपर रामानुजन का जो तीसरा एक बहुत बड़ा कार्य था, और दिस पेपर अब jointly Ramanujan Hardy was published in London Mathematical Society। और ये जो पार्टीशन ऑफ नंबर थ्योरी है, इट इज वेरी यूजफुल इन पार्टिकल फिजिक्स। और ये पार्टिकल फिजिक्स में जब आता है तो जब हम कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स वाज कंस्ट्रक्ट, ऐसा कौन सा पार्टिकल था जो गॉड पार्टिकल की हम बात करते हैं, या बॉस आइंस्टीन थ्योरी जो थी, बॉस आइंस्टीन थ्योरी जो थी, उसको जब दोबारा उसका स्वीडन में यह एक्सपेरिमेंट पिछले 10 सालों पहले हुआ था कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ था, ऐसा कौन सा पार्टिकल है। तो इस समय आपको पता होगा कि लगभग 9 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई थी, और उस 9 किलोमीटर लंबी सुरंग में इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन किया गया था, और इलेक्ट्रॉन्स जो कोलिजन हुआ था उस समय पार्टिकल फिजिक्स को यूज किया गया था,
और पार्टिकल फिजिक्स का वो जो एप्लीकेशन जो बॉस आइंस्टीन थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, वो रामानुजन के पार्टीशन में जो फार्मूला उन्होंने हार्डी के साथ कैलकुलेट किया था, उसका एप्लीकेशन जो है वो कहां पर आया? गॉड पार्टिकल जो आया था आपका, गॉड पार्टिकल या के बॉस आइंस्टीन थ्योरी, उसमें ही आया था। तो रामानुजम यद्यपि 1920 में उनका स्वर्गवास हो गया था और उनके जितने भी डिस्कवरीज थी, जितने भी इन्वेंशन थे, वो 1920 के थे, लेकिन उनके एप्लीकेशंस जो है वो आफ्टर हिज डेथ 100 वर्ष बाद जो है उनके जो थ्योरम्स हैं, उनके जो फार्मूले हैं, उनका बहुत उपयोग हो रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ा रामानुजम का जो उपयोग, जैसे भी हमने बताया कि प्राइम नंबर थ्योरी के ऊपर आईसीटी सेक्टर है ना, पार्टीशन थ्योरी के ऊपर पार्टिकल ऑफ फिजिक्स है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पश्चात एक बहुत बड़ी डिस्कवरी रामानुजम की जो है वो हाईली कंपोजाइट नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो आपने देखा होगा कि हाईली कंपोजाइट नंबर्स हमें कहीं पाठ्यक्रम में दिखाई नहीं देते, यद्यपि इवन ऑड है ना, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स और कंपोजाइट नंबर, हम इनको पढ़ते हैं। हमने कंपोजाइट नंबर तक तो पढ़ा है, लेकिन हाईली कंपोजाइट नंबर जो है वो उसको हमने कभी नहीं पढ़ा। और रामानुजम का ये जो रिसर्च पेपर था हाईली कंपोजाइट नंबर के ऊपर बेस्ड था, इस आधार के ऊपर ही वाज इलेक्टेड द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, जिसको हम FRS कहते हैं। तो रामानुजम को 1917 में जब फेलो इलेक्ट किया था, तो उसके पीछे उसका ये शोध पत्र जो था, इस शोध पत्र के आधार पर रामानुजम को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बनाया गया था। साथ ही रामानुजम को वहां पर PhD की उपाधि प्रदान की गई थी। तो रामानुजम जो यहाँ से इंडिया से 12th फेल होके गए थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च वर्क ही वाज अवार्डेड द डिग्री ऑफ BA PhD। BA मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय साइंस, और PhD की उपाधि उन्हें वहां पर रामानुजम को प्रदान की गई थी। तो रामानुजम का ये जो वर्क था, इस तरह से रामानुजम ने, यदि हम उनके कार्य को देखें तो हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, मॉड्यूलर फंक्शन, अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई, स्फेरिकल, रामानुजम का जो कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में वो इतना सारा है कि अभी आप विश्व मैथमेटिक्स पटल के ऊपर if you will try to solve the problem, then according to American mathematicians and Cambridge University professor, it will take 100 years more to solve the complete problems of Ramanujan। आप ये देख सकते हैं कि जो व्यक्ति 32 की एज में नहीं रहा और जिसका जीवन पूरी तरह से संघर्ष, गरीबी से रहा, और जो 32 वर्ष तक जिया, आप अगर आप उसमें से ये देखेंगे कि ही स्टार्टेड डीप रिसर्च एट द एज ऑफ 17। 17 वर्ष की आयु से उन्होंने डीप रिसर्च शुरू कर दी थी, और 15 वर्ष में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की ट्रिग्नोमेट्री जो थी उसको पूरी पढ़ ली थी। और बेसिकली जिस 1856 के वॉल्यूम की मैंने बात करी थी, वो 1856 का जो वॉल्यूम था एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स ऑफ प्योर एंड मैथमेटिक्स, जो जॉर्ज शुबिचकार का 1856 का वॉल्यूम था, उसको उन्होंने सॉल्व किया और लगभग 4500 थ्योरम्स निकाले थे। और ये 4500 थ्योरम थे, वही रामानुजन की नोटबुक कहलाती है, जिसको बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने जो है पब्लिश किया था, और यही उनकी जो है रामानुजम्स नोटबुक कहलाती है। हार्डी के साथ रामानुजम ने जो कार्य किया था, वो कार्य लंबे समय तक जो है कहीं मिसिंग हो गया था। फिर आप देखेंगे कि जिस तरह से कोल्ड के कारण ही वॉज टोटली प्योर वेजिटेरियन, ही अवॉइड नॉनवेज एंड वाइन, और उस कारण से वो वहाँ बीमार हुए, उनको टीबी की बीमारी हुई। और 1919 में जब पूरी तरह से डॉक्टर्स ने ये कह दिया गया था कि अब रामानुजम के लिए सरवाइव करना बहुत कठिन है, तो उन्हें जो है वहाँ की ब्रिटेन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उन्हें वापस इंडिया भेज देना चाहिए। तो 1919 को उन्हें वापस शिप से जो है, उस समय लगभग 1 माह जो है वो शिप से लगता था,
और 1 माह में रामानुजम टू जो है वो भारत आ गए। वहां उनका स्वास्थ्य खराब रहा, यद्यपि 1919 में आके उन्होंने अपनी रिसर्च को फिर से कंटिन्यू किया और आप देखेंगे कि उस समय उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। टीबी उस समय तक जो है वो क्यूरेबल नहीं थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय मेडिसिन साइंस। इसलिए डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सर्वाइव। तो बीए पीएचडी की उपाधि लेकर जब वो कैम्ब्रिज से लौटे तो उस समय उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी के कॉलेज में ही वाज ज्वाइंड एज प्रोफेसर। उनको एज प्रोफेसर के रूप में वहां ज्वाइन करा गया मद्रास प्रेसिडेंसी के कॉलेज में। उनकी स्थिति नहीं थी कि वो कॉलेज में जाके ज्वाइन करे, तो वहां का जो मैनेजमेंट था यूनिवर्सिटी का, वो उनका ज्वाइनिंग रिपोर्ट उन्होंने उनके घर पर आकर ली और उन्हें एक प्रोफेसर के रूप में जो है विभूषित किया गया। तब भी उन्होंने अपना जो रिसर्च का वर्क था, उन्होंने अपना रिसर्च का वर्क छोड़ा नहीं। और आप देखेंगे कि रामानुजन अंतिम समय तक 1920 की फरवरी तक भी वो गणित का कार्य करते रहे और उनका लास्ट जो मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन था, जो पूरी तरह से उनकी बीमारी में था, वो उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो मॉक थीटा फंक्शन पर आधारित था। द लास्ट पेपर विच वाज सपोज्ड टू बी द बेस्ट पेपर ऑफ रामानुजन। और ये जो मॉक थीटा फंक्शन है, इट कैन बी अप्लाई इन कैंसर थेरेपी। मॉक थीटा से आशय है फाल्स थीटा फंक्शन। तो रामानुजन ने जो है फाल्स थीटा फंक्शन के ऊपर या मॉक थीटा फंक्शन के ऊपर जो कार्य, दिन पहले ये कार्य रामानुजन का था और ये कार्य उसका जो था रामानुजन का, जो उन्होंने बिस्तर के ऊपर पूरी तरह से किया था। और ये मॉक थीटा फंक्शन इज द बेस्ट पेपर ऑफ रामानुजम। और ये पेपर जो है आज कैंसर थेरेपी में यूएसए में और एम्स में यूज होता है। और इस तरह से हम देखें कि वो बीमारी के चलते 26 अप्रैल 1920 को रामानुजम की जो है डेथ हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रामानुजम का पक्ष था, यद्यपि उनके हिस्से की जो गणित है वो तो विश्व में हल हो रही है, लेकिन हम रामानुजम से क्या सीख सकते हैं? रामानुजम से जो सीखने लायक चीज है हमें कि स्ट्रगल, पॉवर्टी, गरीबी में रहते हुए पढ़ना, किस तरह से अपनी सभ्यता, संस्कृति और नैतिकता का पालन करते हुए उन्होंने ब्रिटेन में भी पढ़ाई करी। वो बहुत धार्मिक थे, है ना। पूरी तरह से वो परिवार जो था वो सुसंस्कृत और सुसभ्य परिवार था। उन्होंने कभी भी अपनी सभ्यता, संस्कृति को विदेश में भी नहीं छोड़ा। हार्डी अक्सर कहते थे कि रहस्य की बात करते हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता। रामानुजम ईश्वर पर बात करते हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता। रामानुजम रहस्यवाद और इंट्यूशन के आधार पर गणित के फार्मूलों की बात करते हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता। हार्डी ने हमेशा, हार्डी वास वो पूरी तरह से नास्तिक थे और रामानुजम पूरी तरह से आस्तिक थे। और दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से विपरीत थी, बट दे जॉइन टुगेदर रिसर्च। उन्होंने एक बहुत लंबे समय तक रिसर्च करी। और जब रामानुजम की डेथ हुई 1920 में, तो पूरे विश्व में, पूरे पत्रकारिता ने, पूरी देश ने उनको जो है बहुत अच्छा कवरेज देके उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। और जब हार्डी जो थे, उन्हें बाद में पता लगा कि वाकई में अंकों में एक रहस्य होता है। रामानुजम अक्सर कहते थे कि एनी इक्वेशन हैज नो मीनिंग फॉर मी अनलेस इट एक्सप्रेस द थॉट ऑफ गॉड। वो नंबरों में कहीं रहस्य देखते थे कि 2 to the power n-1, इनको उन्होंने इस तरह से जोड़ा था कि ये ब्रह्म, सृष्टि, गॉड और रहस्य के ऊपर है। इसी तरह से वो हर समीकरण में ईश्वर का दर्शन करते थे। उन्होंने नंबरों में एक रहस्य और ईश्वर का जो है रूप देखा। ये एक बहुत बड़ा उनका एक अविस्मरणीय रामानुजम का योगदान है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सुसंस्कृति, नैतिकता और अपनी सभ्यता, अपने धर्म को बिना छोड़े विदेश में रहकर इस तरह से उन्होंने पालन किया।
तो निश्चित रूप से आज की पीढ़ी यदि रामानुजम के मैथमेटिक्स को तो हम समझते हैं कि वो इतना कठिन है कि उसे 100 साल लगेंगे इस बोर्ड ऑफ स्टडीज हमारी यूजी रामानुजम के इसको इनकॉर्पोरेट करे, तो मैं सोचता हूं कि आज उनकी 100th डेथ एनिवर्सरी और उनकी बर्थडे पर दिस विल बी द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट टू रामानुजम। और मैं सोचता हूं कि समय की मर्यादा का मुझे पालन करना चाहिए। और इसके साथ ही आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी, स्पेशली वाइस चांसलर ऑनरेबल सोमानी जी, मैडम रेखा जैन एचओडी, यहाँ की संचालन करता अनाउंसर नेहा मोडक मैडम, जैन साहब, और जो भी स्टूडेंट्स बीटेक के और इस सारे पूरे कार्यक्रम के विश्वविद्यालय के, प्रदेश के और देश के जो प्रतिभागी, क्योंकि लिंक जो है हम समझते हैं कि देश में कहीं तक मतलब जा चुकी होगी, तो जो जिन लोगों ने भी यहाँ सुना, मैं आप सबके प्रति और स्पेशली आपके मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, sir, for such an amazing lecture. I am sure student will be benefited by the lecture. Now I would like to call Ma'am Dr. Rekha Jain for vote of thanks. Thank you, Neha. I, Rekha Jain, on behalf of the Medicaps University, extends a hearty vote of thanks to our guest speaker, Dr. V.K. Gupta, sir. Sir, thank you so much for your enlightened lecture. It was really very informative lecture. Sir, we would like to listen you more on other occasion. Thank you so much for sparing your time. I extend my thanks to our Honorable Vice Chancellor, Dr. Sunil K. Somani, sir, to take out time for his busy schedule to grace the event. Thank you for inspiring and encouraging us to conduct such kind of program. Thank you, sir. A special thanks to Dr. Preeti Jain, Dean Sciences, for her support and constant motivation. Thank you, ma'am. I must not forget to thank the organizing team, volunteers for working hard for making this event successful, especially my department faculty members and the coordinators of this event, Dr. Pranjali Kekre and Rima Singh. Thank you all. I would like to thank Registrar Sir Dr. Yadav and his staff for providing all kind of support. I would also like to thank our technical team, Amrita Mantri, Surikant Soni, for all their contribution to make this event successful. Last but not the least, all the participants of this program, thank you once again to all. Thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir.